Assalamu alaikum students. Today we'll be studying lecture number 26 of your course Theory and Practice of Counseling. आज लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि हम पिछली दफ़ा क्या पढ़ रहे थे, याद करने की कोशिश कीजिए. Yes, you are right. We were studying Neo-Freudians और आज उसी टॉपिक पर मज़ीद बात करेंगे. आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा हमने एक बड़े इम्पॉर्टेंट न्यो-फ्रॉइडियन का जिक्र किया था एंड दैट इज़ एल्फ्रेड एडलर. सो फर्स्ट लेट्स रिव्यू अबाउट सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडलर and then we will be proceeding toward the current and today's lecture. Alfred Adler in fact was the colleague of Freud और उसने जब साइको एनालिसिस को ज्वाइन किया तो his views became very popular. He soon became a very prominent person as a psychoanalyst. लेकिन soon he discovered that he had different views from those of Freud और कुछ views Freud के जो थे उस पर उसको एतराज़ था. बाकी सारे views जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए, फॉर एग्ज़ाम्पल concept and technique of free association, transference and counter transference and interpretation of the counselor, they are usually followed quite successfully in all theories which are related with one form or other of psychoanalysis. चाहे वो न्यू फ्राइडियंस हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल साइकोएनालिस्ट हैं, वो इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं. So let's first discuss what are the main concepts of Alfred Adler. As I stated before, that he did not agree with few concepts of Freud, and two main concepts which he disagreed were the importance of unconscious, and the second factor was too much emphasis on sexual and aggressive instincts. He talks in fact about social interest and the interaction between family members, and he maintains that the causes of neurosis are not repression of sexual impulses, actually that lies in the faulty lifestyle of the individual and his or her social interests. So the first very important concept which he talks about is family constellation and family environment. He maintains that ordinal position in your family plays a dominant role in building your personality. आप अपने बहन भाइयों में किस नंबर पर आते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक डिटर्मिन करती है बात. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर बॉर्न फर्स्ट, देन you will be playing, in the absence of parents, their role. You will be dominant, you will be high achiever as well, and you will like to confirm please parents, क्योंकि आप एक उन्हीं की तरह का रोल अदा कर रहे हैं. But then the firstborn will have some stress of power and responsibility also. As compared to that, secondborns are usually carefree because they do not have that stress of responsibility. But at the same time, they have to take everything which is generally considered a second-hand treatment. और secondborn के आने पर firstborn जो है उसको भी एक stress का सामना करना पड़ता है because his or her unique position is lost. क्योंकि जितनी attention उसको मिल रही थी, अब वो उसके दूसरे भाई या बहन में भी थोड़ी सी मुंतकिल हो गई है. The secondborn are usually considered more adjusted people because they know that how to make their place in this world. उनका competition भी firstborn के साथ चल रहा होता है. As compared to that, middle position people generally know how to manipulate and to get what they want. किस तरह से ज़िंदगी में कामयाब होना है, they know about that. And they are usually careful about the alliances that could be in the family between the oldest and the youngest child. Finally are the youngest children. Youngest children are the charmers. They usually are high achievers. They are center of attention of the family. Everyone caters their needs, but at the same time they have a problem that they could be spoiled.
और उसकी वजह ये होती है कि हर कोई उनको अटेंशन और अफेक्शन दे रहा होता है, एंड दे नेवर गेट रीड ऑफ दैट इमेज ऑफ देमसेल्व्स एज द पेट और बेबी ऑफ द फैमिली, एंड देन देयर आर ओनली चिल्ड्रन या ओनली चाइल्ड. द ओनली चाइल्ड responsibility and characteristics could vary across cultures. स्पेशली पाकिस्तान में हमने ये डिस्कस किया था कि मदर्स आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर ओनली चाइल्ड, पर्टिकुलरली इफ इट इज़ अ सन. और ओनली चाइल्ड वुड enjoy also a lot of affection from parents, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी स्ट्रेस ये होती है कि उस पर चेक बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं ये एक ही बच्चा है, ये ख़राब ना हो जाए, कोई इसको ख़राब ना कर दे वगैरह, स्पेशली इन पाकिस्तान में. और इसके साथ ही बर्थ ऑर्डर की इम्पोर्टेंस के अलावा एडलर ये भी कहता है कि फैमिली एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अ नेगेटिव फैमिली एनवायरनमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट टू destroying your personality. And a negative family environment could be that which could be authoritarian, which could be very dominating, और जिसमें आपको ग्रो करने के कम चांसेस मिलते हैं. लेकिन that again depends on the perception of the person, क्योंकि आप environment को जैसा perceive करेंगे असल में environment वही होगी. The same adverse environment may not be having same effect on two people because their perception of the environment are different. So actually this is perception that makes a difference. और हमें यहाँ ये बात बड़ी positive नज़र आती है कि if it is the perception which is the most important thing in determining its effect on your personality, तो perception को तो change किया जा सकता है. और इसी पर जो है वो साइकोलॉजी की मुख्तलिफ थ्योरीज जो हैं जो ट्रीटमेंट की बात करती हैं वो बेस करती हैं, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज योर सर्कमस्टांसेस. व्हाट यू कैन चेंज योर सेल्फ आर योर परसेप्शंस. Another important concept of Adler is striving for superiority. People have a meaning in their life, they have a purpose in their life, and they want to be successful. और उस सक्सेस के लिए they have certain goals in future, और उसके मुताबिक वो काम करते हैं. And when we are talking about striving for superiority, it is more similar to self-actualization and moving upward rather than talking about a physical status or position in the society. It is more psychological aspect. Another very important concept is compensation, inferiority and superiority complex. All of us have either some social, psychological or physical deficit, and we try to compensate that. For example, अगर कोई शख्स जो है वो physically weak है तो maybe he would like to become a good debater, writer, जिसका उसकी physical disability के बावजूद जिसको achieve किया जा सकता है. और ये बाज़ औक़ात आपको एक push देती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए. History has shown of quite a lot of examples about compensation. For example, Adolf Hitler was having a lot of physical health problems. और आपको ये पता है कि he rose to the power in the entire world. और उसने कैसे compensate किया अपनी physical weaknesses को. और अगर आप अपने गिरदोपेश में नज़र दौड़ाएं तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे who would have some problem physical या psychological, social, और कैसे यही चीज़ एक बुनियाद बनती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए. और द अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आर इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. लेकिन यहाँ पर आकर कभी ये हो जाता है कि व्हेन यू कैन नॉट कंपनसेट फॉर दैट यू देन डेवलप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. और आपने ये भी देखा होगा कि बाज़ लोगों में कोई डेफिसिट्स होते हैं जिस पे काबू पाने के लिए वो ओवर कंपनसेट कर लेते हैं, एंड देन दे विल बी हैविंग सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है इट इज़ अ वेरी अनप्रोडक्टिव मेंटल फिनोमेना, क्योंकि उससे आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो लोगों के साथ मुतासर होते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ रियल थिंग, दैट इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो टू अदर पीपल कि आप इस तरह के हैं, और उससे आपके ताल्लुकात जो हैं वो लाजमी ख़राब होते हैं. तो आप ये देखते हैं कि कंपनसेशन जो है करने के लिए आप और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर लेते हैं कई दफ़ा. सो द रियल नीड इज़ दैट कंपनसेशन शुड बी रियलिस्टिक, उतनी हो जिससे आपकी ज़ात को ज़रूर फ़ायदा पहुँचे लेकिन बाकी लोग हैं वो उससे उनको प्रॉब्लम ना हो.
Another important concept of Adler is lifestyle of an individual that is determined according to Adler in the beginning of 4 and 5 years of one's life. Or people have their individual lifestyle, or that also determines how their personality will be built. So basically Adler talks about social interest, your unique lifestyles and your fictional final goals toward which you स्ट्राइव और आप उसके लिए कोशिश करते हैं उसको हासिल करने की. तो हमें ज़्यादातर देखें कि हमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स बहुत कम नज़र आते हैं एडलर की थ्योरी में जिनका सेक्सुअल और एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स के साथ ताल्लुक हो, और यहीं पर उसके डिफरेंसेस जो हैं वो हमें फ्राइड के साथ भी दिखाई देते हैं. द रोल ऑफ द काउंसलर इज अकॉर्डिंग टू द concepts that were presented and developed by Adler. For example, the role of the counselor will be to help person becoming aware of his unique lifestyle. ये कैसे बना, उसमें कहाँ पर deficits हैं, and what are his or her future goals, और उसके मुताबिक जो है उसको कैसे जो है वो काम करना चाहिए. आज हम एडलर के थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट न्यू फ्रॉइडियन के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द गोल्स ऑफ एडलर्स थ्योरी? लेट्स सी दैट. बेसिकली इट इज कंसर्न्ड विद हेल्पिंग पीपल डेवलप हेल्दी लाइफस्टाइल्स as well as helping them overcome feelings of inferiority. So when people try to overcome their physical or psychological deficits, तो वो inferiority का शिकार हो जाते हैं if they are not able to overcome them. और लाइफ में बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं. हो सकता है कि आपको नाकामी का सामना करना पड़े, या हो सकता है बाय चांस आपको बहुत सारी कामयाबियां मिल जाएं, या बाय चांस नहीं आपकी एबिलिटीज़ की वजह से भी कामयाबियां मिल जाएं. तो उसका नतीजा जो है वो ये होता है कि ईदर यू डेवलप इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. एंड व्हेन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो द गोल ऑफ द थेरेपी इज टू help people identify that problem and how that was created, and to encourage clients to cultivate social interest. हम ये देखते हैं कि एडलर की अपनी ज़िंदगी में ही suffered from a lot of physical problems, and to compensate for that he cultivated his social life. और उसने बहुत ज़्यादा अपनी तवज्जो जो थी इस चीज़ पर रखी कि उसके social interactions जो हैं वो कैसे बढ़ते हैं. तो इसी तरह से he says that it is very important that people would have interaction with each other, and that will determine your unique lifestyle. Adlerian counselors stress 3 goals of the therapeutic process, and let's see what are they. First one is establishment and maintenance of a democratic counseling relationship. The counselor tries to maintain a democratic relationship with the client, which is based on equal relationships. वो कोई ज़्यादा या कम नहीं है उन दोनों में से, दोनों मिलके जो है वो गोल्स अचीव करने के लिए, फ्यूचर गोल्स के लिए काम करते हैं. एंड टू डिटर्मिन द डेफिसिट्स इन द लाइफस्टाइल, तो दोनों ने मिलके काम करना होता है. द सेकेंड गोल इज इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लाइंट्स लाइफस्टाइल इन अ वे दैट प्रमोट्स इनसाइट. सो दैट लाइफस्टाइल दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 4 or 5 years, उसकी तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई जाती है. एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन द क्लाइंट कम टू नो अबाउट दैट. द थर्ड गोल इज रीओरिएंटेशन एंड री-एजुकेशन ऑफ द क्लाइंट विद अकम्पनिंग बिहेवियर चेंज. सो व्हेन दोज फॉल्टी लाइफस्टाइल्स आर डिटर्मिन्ड, देन द रोल ऑफ द काउंसलर इज मोर रिगरस. यहाँ पर काउंसलर ये कोशिश करता है कि एज अ टीचर उसको री-एजुकेट करे. And you remember when we talked about the role of the counselor, we discussed that the counselor plays the role of a teacher and model and diagnosticians at the same time. तो जो counselor है who is working according to individual psychology, उसकी कोशिश ये होगी कि re-educate करे client को कि what can be done to solve the problems, या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसके बारे में उसको अवेयरनेस हो, एंड देन फोकसिंग ऑन दीज एलिमेंट्स एंड ट्राई टू चेंज और मॉडिफाई देम. व्हाट आर डिफरेंट टेक्निक्स दैट एडलर emphasizes in his individual psychology theory? Number 1 is confrontation. The counselor challenges the client about any irrational ideas, और उस तरह से नहीं जैसे रैशनल इमोटिव थेरेपी में है.
बल्कि वट एवर आर फॉल्टी लाइफ स्टाइल इज़, और हम ये एक सोचते हैं कि हमारे पास चॉइसेस नहीं हैं, हमारे इस तरह के हालात हैं कि परहैप्स वी आर नॉट इन पोजीशन टू हैव सम डायरेक्शन इन आवर लाइफ, तो इसकी तरफ तवज्जो दिलाने की बात करता है काउंसलर. एंड इफ़ देयर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन योर सर्कमस्टांसिस एंड योर आइडियाज़, दैन द काउंसलर ट्राइज टू कन्फ्रंट दैट, उसको चैलेंज करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से इन माई लाइफ के मेरी लाइफ बिल्कुल रियून हो गई है, आई डोंट हैव एनी चॉइस, मैं अब इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ, तो ही विल ट्राई टू चैलेंज मी so that I would be able to look at the choices that are available in my life. कभी कभार ये होता है कि people who are under stress, they have choices, लेकिन वो उनकी तरफ सही तरह से देख नहीं सकते. So the role of the counselor is to help identifying those choices and challenging if I have any misconception about them. The second thing is asking question. Different questions are asked in Adlerian therapy. और एक पर्पस तो ये होता है क्वेश्चंस पूछने का कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में चाहिए. एक बात और ये भी होती है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मैं बनना चाहती हूँ उसको कैसे मैं फॉलो करूँगी. फॉर एग्जाम्पल, वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस डायमेंशन दैट व्हाट वुड यू बी लाइक इफ़ यू वर वेल. अगर आप समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स आप कह रहे हैं ये ना हो, तो आप किस तरह की पर्सनैलिटी होती है आपकी. सो आई वुड पॉइंट आउट कि मेरी इस तरह की पर्सनैलिटी होती कि मैं इस वक्त फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि, या कोई भी क्लाइंट ये कहता है कि मैं बीए नहीं कर सके, वो कहते कि आप बीए नहीं कर सके, अगर आप बीए कर लेते तो फिर आप कैसे होते और ज़िंदगी में क्या चांसेस मिलते, उसके बाद आप क्या करते. सो दैट इट विल पॉइंट आउट टूवर्ड व्हाट अ काइंड ऑफ पर्सन आई वुड लाइक टू बिकम, और मैं अब उसके लिए कोशिश क्यों नहीं कर सकती या कर सकता. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेजमेंट टू मेक प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल चॉइसेस. सो इन फैक्ट एनकरेजमेंट इज द की टू मेक प्रोडक्टिव लाइफ चॉइसेस. ऑन द फर्स्ट प्लेस द काउंसलर इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट हैज चॉइसेस, और मे बी द क्लाइंट इज नॉट अवेयर ऑफ दोज चॉइसेस, लेकिन ही हैज चॉइसेस. एंड देन इफ ही हैज चॉइसेस, तो फिर आपने उसको अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कैसे करना है. सो एनकरेजमेंट प्रोवाइड्स अ की टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ दीज गोल्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिंग एज इफ. इट इज ओरिजिनली द आइडिया ऑफ हैंस वेहिंगर who presented that idea in 1911, who wrote that people create the worlds they live in by the assumptions they make about the world. So Wehinger maintained that you make your world, you create your world, and you can do that by the assumptions you would have about the world. So the main important thing is कि world किस तरह की है ये बात नहीं है, आप उस दुनिया को कैसे चेंज कर सकते हैं बाय योर अजम्पशंस एंड बाय एक्टिंग इन अ डिफरेंट वे. मे बी इट इज सिमिलर टू वन पीस ऑफ पोइट्री बाय डॉक्टर अल्लामा इकबाल. वो एक शेर है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है. तो मे बी इट इज़ द सिमिलर कॉन्सेप्ट कि यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड बाय योर बिहेवियर. अब असल में क्या होगा कि दुनिया चेंज नहीं होनी, लेकिन आपकी परसेप्शंस और आपकी डीलिंग उसके लिए डिफरेंट हो जाएगी, एंड दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंसेस इन रिजल्ट्स एंड आउटकम्स. सो यू एक्ट एज इफ, यानी अगर वाकई मेरे में ये क्वालिटीज़ हैं तो फिर कैसे होगा. जैसे मैं अपने आप को फ्यूचर में परसीव करती हूँ, आई शुड एक्ट एज इफ आई एम अ गुड डिबेटर, आई शुड बिहेव लाइक दैट कॉन्फिडेंटली. So that will bring a change in my current behavior. The next technique is spitting in the client soup. अब ये एक मुहावरा सा है और बड़ा अजीब सा भी लगता है. इससे मुराद क्या है? The counselor spits in the client soup. The counselor makes client realize of some of his faulty and dysfunctional behavior. और जब उस behavior के बारे में क्लाइंट जान जाता है तो फिर उसको उसकी फीडबैक नहीं मिलती. सो देन द एडवांटेज ऑफ पे ऑफ इज गॉन. इसको मिसाल के जरिए समझते हैं क्योंकि उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगा. इफ आई नो दैट
when my friend talks about one issue, one particular issue, why I am always defensive? या फिर पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने मिसालें दी थी कि अगर एक काउंसलर जो है हैज़ अनहैप्पी मैरिटल लाइफ, और जब भी कोई एक अच्छे हस्बैंड का, मर्द का जिक्र करता है तो शी बिकम्स अनकंफर्टेबल. तो इफ शी नोज कि यस दिस इज अ प्रॉब्लम एंड व्हाई आई एम चेंजिंग द टॉपिक, व्हाई आई एम बिकमिंग डिफेंसिव, तो वो जो मुझे रीइंफोर्समेंट मिल रही थी, और रीइंफोर्समेंट क्या थी कि मेरी एंजाइटी कम हो जाती थी इफ आई वुड चेंज द टॉपिक, तो वो नहीं हो. सो स्पिटिंग इन द क्लाइंट सूप का मतलब है आप उसको रियलाइज करवाते हैं कि यस दिस इज द रीजन ऑफ योर पर्टिकुलर बिहेवियर. इफ अ वुमन इज, another example, if a woman is behaving in a very authoritarian way to her daughter, तो अगर उसको बता दिया जाए कि दिस इज योर बिहेवियर, तो वो फिर जब भी वो इस तरह, और उसको कहा जाए कि बिहेवियर आपने वैसा ही रखना है, तो आप बिहेवियर वैसा ही रखते हैं, देन यू रियलाइज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट, बिकॉज नाउ यू आर अवेयर ऑफ दैट. सो दैट इज मीन्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट. एंड देन टास्क सेटिंग. It is sometimes difficult to work for the long lasting goals, और जो बड़े टारगेट होते हैं उनके लिए अगर मुझे कहा जाए कि आपने उसके मुताबिक काम करना है, तो sometimes it is difficult, क्योंकि मुझे लगता है they are unattainable, unachievable, और मेरे से नहीं होता. If you divide your goals into sub goals, and first I shall start working on those goals which are relatively easy, और मुझे साथ साथ जब मैं उनको अचीव करती हूँ तो मुझे रीइंफोर्समेंट भी मिलती जाती है, बिकॉज जो दूर की गोल्स होंगी उनकी अचीवमेंट अभी तो नहीं मिलेगी, उनकी रीइंफोर्समेंट अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी वो हल ही नहीं होगा मसला. तो बेहतर ये है कि आई कुड डिवाइड माई गोल्स इनटू सर्टेन सब सेक्शंस, एंड आई कुड कंसंट्रेट फर्स्ट ऑन दोज गोल्स विच कुड बी अटेन्ड ईजीली. शॉर्ट टर्म उनके बेनिफिट्स हो सकते हैं, और देन आई वुड कंसंट्रेट ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स. द फाइनल थिंग इज पुश बटन. Push button means that the counselor helps the client in realizing the choices that are available to him or her, and then imagining as if they are real. और अपने आप पर वही परसेप्शन तारी की जाए जो कि मैं अपने आप के लिए मुस्तकबिल में चाहती हूँ. And then keep that positive or negative experience and emotion with me. अगर मैं ये अपने आप पर इमेजिन करूं कि आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन इन फ्यूचर, एंड आई एम एक्सपीरियंसेस दैट इन माई थाट्स, और मैं उसको इमेजिनेशन के ज़रिए, अपनी थाट्स के ज़रिए अपने आप पर तारी कर लूँ, और उस एक्सपीरियंस को साथ साथ रखूँ, तो देन इट वुड हैव अ पुश फॉर मी सो दैट आई कुड वर्क फॉर माई teleological or future goals. So these are few techniques which are used by Alfred Adler quite successfully in individual psychology, therapeutic or counseling approach. So now what about evaluation of Adler's theory? क्या strengths हैं, क्या weaknesses हैं? So let's see that. The approach is versatile, applicable to diverse populations, because this is not limited to personality development in first few years of life. तो ये applicable है ज़्यादातर लोगों के लिए. It is applicable to all ages. It is applicable to teachers, to parents, because parents can learn that how the birth order can create differences in your personality, and accordingly they can behave differently with their children according to their birth order. Similarly, they would know that how negative atmosphere in the family could create problems for the child's or adolescent's problem, तो उसके मुताबिक इनको कैसे अमल करना चाहिए. Adler also suggests the importance of play therapy for children, especially those children who are from 4 to 9 years, क्योंकि वो उसको अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं और उसमें इन्वॉल्व भी हो सकते हैं. तो उसने डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट पॉपुलेशंस के लिए सुजेस्ट किए हैं. According to his estimation, play therapy is really good for expressing children's conflicts and thoughts. Similarly, he advises different kinds of techniques for adolescents, जैसे कि those techniques which emphasize verbal and behavioral consequences, वो ज़्यादा important हैं. And particular problems of adolescents should be targeted, for example, problems of getting power,
inadequacy problems, or then realizing one's own potentials जिनके बारे में सही तरह clarity नहीं होती है adolescents को. तो inferiority is one of the problems क्योंकि they are just developing their personality. तो उसमें कई दफ़ा ये होता है कि बड़े ups and downs होते हैं, कभी बहुत superiority complex हो जाता है, कभी inferiority complex भी हो जाता है when there is one defeat from any side. So he emphasizes particular problems of children and adolescents and their differences, and their emphasis are different for different kinds of populations. And then the approach is useful in the treatment of a variety of DSM-4 disorders, for example, conduct disorders, antisocial personality disorders, adjustment problems, or anxiety disorders in children and adults. And the approach also contributes to other helping theories and to the public's knowledge. Kaise? Because his concepts about growth, life scripts, independence, social interest, they contribute to the development of many concepts in other theories, for example, rational emotive therapy, client-centered therapy, etc. And his terminology, जो वो use करता है about inferiority and superiority complex, you know that they have become a part of people's general language vocabulary, और आम लोग इसको use करते हैं. The idea which was initially developed and presented by Adler. So what about weaknesses of Adler's theory? Let's talk about that now. The approach lacks a firm and supportive research base. Although Freud's ideas are considered somewhat vague and very controversial, but still they generated a lot of research in the previous 100 years. जब से वो थ्योरी इनफैक्ट बनी है तब से उस पर बहुत उसके कॉन्सेप्ट्स पर काम हो रहा है, और ज़्यादातर केस हिस्ट्रीज़ जो हैं वो ली जाती हैं फ्राइड के कॉन्सेप्ट्स को वाजे करने के लिए और उस पर फर्दर काम करने के लिए. लेकिन हमें इतनी ज़्यादा सिस्टमेटिक एम्पिरिकल रिसर्चेस जो हैं वो एडलर की थ्योरी पर नहीं मिलती, और इसकी वजह से भी थोड़ा सा जो है वो ड्रॉबैक समझा जाता है कि जो एडलर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पूरी तरह परखा नहीं जा सका. Another important thing is that the approach is vague in regard to some of its terms and concepts. For example, teleological goals, future goals जो हैं. So these are some vague terms जो थोड़ी सी clarity जो है वो उसकी मुश्किल हो जाती है. The third weakness is that the approach may be too optimistic about human nature and neglectful of other life dimensions, for example, unconscious and sexuality. Social interest पर बहुत ज़्यादा जोर है, लेकिन instincts जो हैं according to Freud's theory and other psychoanalysts, they also play a dominant role how a person will be behaving, how a person's personality will be developed. So he ignored these important factors which is contributed जो समझा जाता है कि ये इसकी थ्योरी की weakness है. So this was all about Adler's theory, that is called individual psychology. और अब हम आगे चलते हैं. A very important neo-Freudian, Carl Gustav Jung. He was born in 1875 and he was an early member of Freud's psychoanalytic circle, and he describes his differences with Freud in his book Symbols of Transformation. He was also a psychiatrist and he was Swiss. स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ और वो भी साइकेट्रिस्ट था. जैसे हमने ये देखा कि फ्राइड न्यूरोलॉजिस्ट था और उसमें भी साइकेट्री में ज़्यादा काम किया. इसी तरह स्विस ये जो हमें नज़र आता है, अब तो साइकोलॉजिस्ट ही कहते हैं यूंग को, क्योंकि बेसिकली उन्होंने बहुत साइकोलॉजी की थ्योरीज़ की कंट्रीब्यूशन के लिए काम किया, बट एज सच ही वाज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट. सो ही ज्वाइंड साइकोएनालिटिक movement, and at one stage he was considered so much important in the circle of psychoanalysis that at one point Freud considered him that he will perhaps be leading psychoanalysis after Freud, यानी कि वो head होगा इस movement का. एक वक्त में ये समझा जाता था, लेकिन in the beginning of relationships he started realizing that he had some differences with Freud, और काफ़ी सालों तक उसके साथ काम करने के बाद finally he thought to develop his own ideas.
स्पेशली ये स्प्लिट जो है वो कहा जाता है कि उस वक्त पैदा हुआ जब बोथ ऑफ देम इन 1908 वेंट टू क्लार्क यूनिवर्सिटी फॉर लेक्चरिंग। यूएसए में आपको जिक्र होगा कि मैंने ये बात की थी कि फ्राइड रोज टू प्रोमिनेंस इन यूएसए व्हेन ही विजिटेड क्लार्क यूनिवर्सिटी। तो यूंग वाज अकम्पनिंग हिम एंड देयर फ्राइड did not incorporate and share his ideas, Jung's ideas about dreams. तो उसने सिर्फ अपनी आइडियाज़ जो थे ड्रीम्स के बारे में वहाँ प्रेजेंट किए एंड ही एक्चुअली डिसएग्रीड विद आइडियाज़ अबाउट ड्रीम्स ऑफ यूंग। तो यूंग के जो आइडियाज़ ड्रीम के बारे में थे वो फ्राइड के उससे डिफरेंट थे। एंड ड्रीम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूंग। आप ये अभी लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें ये नज़र आता है कि ये डिफरेंसेस जो थे वहाँ पर बड़े शदीद हो गए एंड यूंग रियलाइज्ड दैट हिज आइडियाज़ आर डिफरेंट, सो ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एट दिस थिंग कि उसके जो आइडियाज़ थे वो शामिल नहीं किए गए जो फ्राइड ने वहाँ ड्रीम की इंटरप्रिटेशन पेश की थी। एंड देन फाइनली ही थॉट टू हैव अ स्प्लिट। So he observed two personalities of his mother and later used this in the concept of personal and collective unconscious. This is a very important concept of Jung, collective and personal unconscious, and that was based on his observation about his mother having two personalities. एक तो वो है जो दुनिया के लिए है और एक वो है जो उसकी अपनी है। इनके बारे में भी अभी बात होगी कि what is meant by collective and personal unconscious. Then the distant relationship of his parents represented the dichotomies of spirit and matter, anima and animus, persona and shadows. So he realized from his own family environment that perhaps sometime things exist in opposite forms, dichotomous, एक इधर और एक इधर, दोनों एक दूसरे से different. Anima और animus क्या हैं, persona और shadow क्या हैं, ये अभी यूंग के कॉन्सेप्ट जब डिस्कस करेंगे तो इनका जिक्र आएगा। What about Jung's ideas about human nature? Jung has basically a developmental perspective that is quite different from that of Freud. The psyche, the essence of a person is composed of conscious and unconscious according to Jung. इंसान की जो पर्सनैलिटी है या साइकी जो एसेंस है एक शख्स की पर्सनैलिटी का, that is composed of collective and कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। और आगे से जो अनकॉन्शियस है उसके भी आगे से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। कॉन्शियस वट एवर आर एक्सपीरियंसेस आर, वी आर कॉन्शियस ऑफ दैट। अनकॉन्शियस जिसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है, ये चीज़ तो आप फ्रॉइड के यहाँ भी पढ़ चुके हैं। एज फॉर एज अनकॉन्शियस इज कंसर्न, ही फर्दर टॉक्स अबाउट कलेक्टिव एंड पर्सनल अनकॉन्शियस। Personal unconscious resides just below consciousness and it consists on repressed, forgotten traumas of your life. And not only repressed and forgotten traumas, but subliminally perceived events and experiences also come as the content of personal unconscious. ये फ्राइड के अनकॉन्शियस का भी इसमें जिक्र आता है और जो सबकॉन्शियस है वो भी आप समझ सकते हैं कि ये पर्सनल अनकॉन्शियस का पार्ट है। लेकिन जैसे फ्राइड का अनकॉन्शियस है दैट इज़ नॉट इन द अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल, तो जो यूंग का पर्सनल अनकॉन्शियस है ये भी बहुत अवेयरनेस में नहीं होता, बट इट इज़ मोर सिमिलर टू सबकॉन्शियस दैन टू अनकॉन्शियस। और ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे जो रिलेटिवली विच आर रिप्रेस्ड, फॉरगॉटन, लेकिन कुछ थोड़े से सबकॉन्शियस लेवल पर भी हैं, दे ऑल आर रिजाइडिंग इन आवर पर्सनल अनकॉन्शियस एंड दे आर मेनली द कॉन्सेप्ट्स, विशेस, अर्जेस विच आर रिलेटेड विद आवर पर्सनल लाइफ। व्हाट इज ट्रू अबाउट कलेक्टिव अनकॉन्शियस? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल अनकॉन्शियस? एज आई सेड बिफोर दैट पर्सनल अनकॉन्शियस इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, लेकिन जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है दैट कंटेन्स आर्कीटाइप्स, images and symbols that are common to all people, all human beings either, या फिर वो लोग जो एक कल्चर में इकट्ठे रह रहे हैं। दोनों बातें सही हैं। So collective unconscious contains the deposits of human psyche from the beginning of time. Whatever knowledge, information has been transmitted to us from generation to generation, that is a part of unconscious, that is collective.
और कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आर्कीटाइप्स हैं, इमेजेस हैं. आर्कीटाइप्स वो होते हैं जो स्टैंडर्ड हैं, ओरिजिनल हैं, दे आर ऑलवेज देयर इन द वर्ल्ड, और वो हमारे तक हमारी जनरेशन्स के ज़रिए इन अ पर्टिकुलर कल्चर और फिर सारे कल्चर्स को कंबाइन कर लिया जाए तो वो हमारे तक मुंतकिल होते हैं दुनिया में एक से दूसरे नस्ल में. व्हाट अबाउट कंपोजिशन ऑफ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी कैसे बनती है? पर्सनैलिटी की कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जो कि यूंग के नज़दीक इंपॉर्टेंट हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज ईगो. ईगो इज द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, वट एवर वी आर अवेयर ऑफ, and it is related with all of other mental processes and phenomena. Second is persona. Persona is a mask or public face worn for protection of the individual. Basically, persona is not real me. It is what is expected from an ideal person and I want to behave like that. और इसकी वजह से कई दफ़ा ये होता है कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो छुपी रहती है. This is in fact the mask that I am wearing for the world, so that they shall be looking at me in a positive light. मेरी पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन लोगों पर क्या हो, जिसके लिए मैं कोशिश भी करती हूँ या करता हूँ, that reflects my persona. And usually we try to fit ourselves into a collective ideal person, and that collective is again linked with your collective unconscious. कि एक आइडियल शख्स का इमेज जो है वो हमारे मुआशरे में क्या है, दुनिया में क्या है, and we try to portray that to other people. और ये पॉसिबल है कि जो मेरी रियल लाइफ है या मेरी रियल पर्सनैलिटी है वो ऐसी ना हो. एंड अकॉर्डिंग टू यूंग, दिस persona, if it is very much exaggerated, then it creates a lot of problem for the individual, क्योंकि it is not according to my personal standpoint या viewpoint. उसके मुताबिक नहीं है, बल्कि ये वो expectations और ideal figure के मुताबिक है which has been transmitted from generation to generation and which have become a part of our culture. The next concept is anima and animus. Both are words taken from Greek language. और anima का मतलब है soul और animus का मतलब है spirit or breath. Anima और animus क्या हैं? Let's see that. They represent both biological and psychological aspects of femininity and masculinity. जो एक मेल के जहन में फीमेल के एलिमेंट्स हैं या फीमेल की करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर कॉल्ड एनिमा. और जो एक फीमेल में मेल की करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर कॉल्ड एनिमस. हाउ दे आर अटेन्ड? कैसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फीमेल एंड आई वुड हैव सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेल, जिसकी वजह से इट्स ईजी फॉर मी टू प्रोजेक्ट ऑन टू अ मेल. The answer to that given by Jung is that it develops as my experience with other males, for example my father and other significant males in my life, and then the archetype that I have obtained from my collective unconscious about a male. तो ये सारे मिलके जो मेरे माइंड में या मेरी पर्सनैलिटी में एनिमस जो है उसको बनाएंगे. इसी तरह जो एनिमा जो एक मेल में एक फीमेल का इमेज होता है वो कैसे बनता है? अगेन इट्स डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द मेल विद हिज मदर. द सिग्निफिकेंट वुमन आर वन वुमन इन हिज लाइफ एंड द एक्सपीरियंस ऑफ दैट कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो हमें ये बताता है कि एक आइडियल जो फीमेल है वो कैसी होनी चाहिए हमारे मुआशरे के मुताबिक. तो उससे मिलकर जो है और मेरे एक्सपीरियंसेस पर्सनल और जो एक ट्रांसमिट हुए हैं मुझ तक थ्रू कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये सारे मिलकर एनिमा और एनिमस को बनाएंगे. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज शैडो. दिस इज द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन बींग्स. लेकिन ये डार्क साइड ऐसी नहीं है जो फिक्शनल है, दैट एक्चुअली एग्जिस्ट्स इन अस. मे बी दिस इज अ बिट सिमिलर टू फ्राइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ इड. अब ये क्या है? लेट्स सी दैट. The shadow is actually representing our dark side and the thoughts, feelings and actions that are not socially acceptable. Jung actually lived through 2 world wars and he was witness of collective shadow that brutally ruled at that time. और उसने वो जो डिस्ट्रक्शन देखी उससे अंदाज़ा उसको हुआ कि कलेक्टिव शैडो भी होता है और एक पर्सनल शैडो भी होता है. अब
ये जो पर्सनल शेडो है ये क्या है? वॉट एवर द डार्क साइड्स ऑफ माई पर्सनैलिटी, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू फेस दैम। उसकी बजाय मैंने क्या किया हुआ है? आई एम हैविंग अ persona फॉर अदर पीपल्स परसेप्शन, फॉर अदर पीपल्स व्यू ऑन मी। मैंने लोगों के लिए एक मॉस्क कह लें कि अपने आप पर चढ़ाया हुआ है, बिकॉज आई वॉन्ट टू फिट माई सेल्फ इन टू द आइडियल फिगर। और जो रियल शेडो है, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, दैट इज हिडन। और अगर कुछ पार्ट्स ओपन भी हैं, कॉन्शियस भी हैं, तो मैं नहीं चाहती कि लोग उसके बारे में जानें। सो द थेरेप्यूटिक टेक्निक विल बी टू मेक पर्सन फेस दैट शेडो। अगर शेडो नहीं होगा तो वी विल बी एबल टू प्रोजेक्ट ऑन आवर सेल्फ। और वो जो प्रोजेक्शन है, जो फ्राइड का कॉन्सेप्ट है, और आप ये देखते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ भी नज़र आते हैं, बिकॉज बेसिकली दीज ऑल न्यू फ्रॉइडियंस आर फॉलोइंग साइको एनालिटिक ट्रेडिशन। तो ये भी, यूंग भी प्रोजेक्शन की बात करता है। सो व्हेन अ पर्सन इज फेसिंग शेडो ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी, ही इज टेकिंग बैक प्रोजेक्शंस rather than projecting on to other people। हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्शन में हम अपने नेगेटिव ट्रेट्स प्रोजेक्ट कर देते हैं लोगों की तरफ, एंड आई एम सेइंग आई एम नॉट लाइक दिस, अदर पीपल आर लाइक दैट। एंड रिमेंबर दोज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर ऑफ्टन स्पोकन बाय पीपल इन सोसाइटी, कि दरअसल लोग बहुत हिपोक्रेट हैं, दरअसल लोग बहुत डिसऑनेस्ट हैं, दरअसल लोग बहुत सड़कों पर गंद डालते हैं, दरअसल लोग ये और वो। तो इस तरह की बातें हम जो करते हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी आल्सो, दिस सिविलाइजेशन, बट वी डोंट एडमिट टू दैट शेडो ऑफ आवर पर्सनैलिटी। तो द थेरेप्यूटिक एलिमेंट ऑफ दिस recognition of shadow is that we, with the help of counselor, recognize and face that shadow, and in that way we will have a deeper understanding into our life, और human beings की life में ज़्यादा जो है वो हमारी understanding जो है वो develop हो जाएगी, और उसके साथ हम जो projections करते हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों की तरफ उसको नहीं उसको डाइवर्ट करेंगे, बल्कि हम अपनी पर्सनैलिटी में उसको फेस करना सीख लेंगे। एंड द बिगेस्ट एडवांटेज विल बी आर गुड एंड पॉजिटिव इंटरेक्शंस विद अदर पीपल। Jung also talks about two psychological types, and this is how we perceive the world. हम कैसे दुनिया की तरफ, हमारी परसेप्शन कैसे है, this is determined by our personality type. और पर्सनैलिटी टाइप्स दो तरह की होती हैं अकॉर्डिंग टू यूंग, वन इज एक्सट्रावर्ट एंड द अदर इज इंट्रोवर्ट। एक्सट्रावर्ट पर्सन लुक्स एट द वर्ल्ड एंड देन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक्सट्रावर्ट इज बेसिकली सोशल ओरिएंटेड पर्सन, दैट इज व्हाई ही ऑलवेज लुक्स टू द वर्ल्ड फर्स्ट एंड देन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो जो उसके सारे एक्शंस होंगे विल बी डिटर्मिन्ड बाय दिस इम्पोर्टेंस। इसीलिए दीज पीपल विल बी मोर कन्फर्म टू द सोसाइटी, बिकॉज they are concerned कि what people think about them, and they are influenced by collective norms, and that is why they are more confirming, because they respect collective norms. As compared to that, introvert uses the perspective of the inner world and then perceives the outer world. He is more concerned what is going on in his or her mind. He is more concerned about his ideals of the world, and that is why these people are less social. ज़्यादातर अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, राइटर्स हैं, दे आर मोर इंट्रोस्पेक्टिव, दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर मेंटल फिनोमेना मोर, एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिव नॉर्म्स। दे डू नॉट केयर अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड सोसाइटल नॉर्म्स सो मच। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही उनको नज़रअंदाज करते हैं, बिकॉज देन दे विल बी टोटली नॉन कन्फर्मिस्ट, एंड this does not mean that they are non-conformist. It is just like that they are giving more importance to their subjective norms rather than to objective and societal norms. Goals of Jung's theory are individuation. Or what is individuation? Individuation is actually the differentiation of the various components of psyche. हर शख्स की personality के different parts होते हैं, और आप उनमें वेरिएशन को तलाश करें। यू कम टू नो दैट दीज आर पार्ट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी, और कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो मेरी पर्सनैलिटी को मिलकर बनाते हैं। सो आई एम अचीविंग इंडिविजुएशन, एंड देन ट्रांसेंडेंस फंक्शन इज रिलेटेड विद अ कॉन्स्टेंट स्ट्राइविंग फॉर होलनेस, इंटीग्रेशन ऑफ द पर्सनैलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। persona and shadow are two elements of my personality. How I can integrate them, how I can face shadow and
can minimize persona. This is the basically aim of the counselor if he is following Jungian counseling approach. And then the process of change is very much individual. हम सब लोगों के लिए एक ही पैराडाइम सेलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज एवरी पर्सन विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर, और वही डिटर्मिन करेगा कि उसकी जो चेंज है पर्सनैलिटी में वो क्या होनी चाहिए. What are different interventions that are employed in Jungian counseling approach? इसकी approach जो है, as I mentioned before, it is known as analytical psychology. Analytical psychology because you do an analysis of yourself. तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूंगियन एनालिसिस. और जब हम बात करते हैं इंटरवेंशंस की, लेकिन ज़्यादातर हमें इंटरवेंशंस जो हैं वो यूंग की काउंसलिंग अप्रोच में नहीं मिलती, और उसकी वजह ये है कि ये एक फ़िलासफ़िकल अप्रोच है. यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि कोई फ़िलासफ़िकल अप्रोचेज़ हैं, कुछ सोशियोलॉजिकल हैं, कुछ साइकोलॉजिकल अप्रोचेज़ हैं. सो इट इज़ मोर लाइक अ फ़िलासफ़िकल अप्रोच, और उसमें ज़्यादा ज़ोर जो है वो इस चीज़ पर नहीं है कि टेक्निक्स कौन सी यूज़ की जाएँ, ज़्यादा ज़ोर इस चीज़ पर है कि हाउ यू बिकम अवेयर ऑफ़ योर पर्सनैलिटी एलिमेंट्स और फिर कैसे उनको इंटीग्रेट करना है. सो ड्रीम एनालिसिस इन फैक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन यूंग्स थेरेपी. और जब आप एनालाइज करते हैं ड्रीम्स को तो यू लुक एट द कंटेंट्स ऑफ ड्रीम, और वो जो कंटेंट हैं एक्चुअली दे शेड लाइट ऑन हाउ अ पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी इज़ रॉब्ड बाय हैविंग डिफरेंट पर्सोनाज. और ड्रीम एनालिसिस जो है वो हमें इनफैक्ट एक रोशनी प्रोवाइड करता है एक शख्स की पर्सनैलिटी को समझने के लिए. So it is an important way to understand the unconscious and its impact on conscious life. How unconscious is affecting your life. तो हमें अगर हम ड्रीम को एनालिसिस करें तो हमें बहुत सारी चीज़ों को पता चलता है. अभी इसकी थोड़ी सी मिसालों से मैं इसको वाज़े करने की कोशिश करूँगी आपके सामने. He said that dreams are symbolic and the figures in dreams are personified features of the dreamer personality. Dreams में अगर आप physical illness देखते हैं तो according to Jung this may be representing your psychological illness. और जो ड्रीम्स में पर्सनैलिटीज़ नज़र आती हैं वो असल में डिफरेंट पीपल नहीं हैं. दे आर नॉट रेफरिंग टू डिफरेंट पीपल इन योर लाइफ. इन फैक्ट दे आर पर्सोनिफाइड फीचर्स ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी. दैट वन कैन बी पर्सोना, अदर कैन बी शैडो, द अदर कैन बी एनिमा और एनिमस. तो ये हमारी अपनी ही ज़ात के हिस्से होते हैं जो हमें ड्रीम्स में नज़र आते हैं. एंड इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इंटरप्रेटिंग ड्रीम्स कि एक तो आप ये समझें कि ये कौन कौन सी पर्सनैलिटी डायमेंशन को इंडिकेट करते हैं, और आप साथ ये भी समझें कि कौन जो सीक्वेंस है इवेंट्स का क्या है, पहले कौन सी चीज़ आई, बाद में कौन सी आई, आखिर में कौन आई. और ये भी देखें कि व्हाट आर डिफरेंट पीपल हु आर ईदर नेम्ड और अननेम्ड. क्या उनको कोई नाम भी है उनका ख्वाब में या बग़ैर नाम के हैं, और उस चीज़ से फिर उसकी पूरी इंटरप्रिटेशन होगी. एंड ओनली वन ड्रीम इज़ नॉट इनफ, क्योंकि एक ड्रीम से कुछ पता नहीं चलता. वन ड्रीम कुड बी लीडिंग टू अनदर द नेक्स्ट ड्रीम. सो और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज फार एज ड्रीम एनालिसिस इज कंसर्न, थोड़ा सा ये देखते हैं. ड्रीम्स आर प्रोस्पेक्टिव. अकॉर्डिंग टू यूंग दे टेल अस अबाउट आवर फ्यूचर, क्या होने वाला है हमारे साथ. सो दे हेल्प पीपल प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द एक्सपीरियंस एंड इवेंट्स they anticipate in the future. एक ये बात. दूसरी बात ये है कि they serve as a compensatory function. What is meant by that compensatory function? They work to bring about a balance between opposites within a person. तो basically ये जो है dreams resolve करते हैं हमारे बहुत सारे conflict, क्योंकि हमारी personality में जो opposing elements हैं they are reflected in dreams. तो एक तरह से वो हमारे जो है वो compensation भी provide करते हैं. For example, I want to become very successful but I am not, तो ये compensation होगी कि मुझे उस तरह के dreams नज़र आएंगे where could be wish fulfillment. और एक और भी opposing जो factors हैं मेरी personality के, जैसे my persona and my shadow will be reflected there. So in that way they will be providing a compensation. और उसके साथ थोड़ा सा हमें हल भी मिलता है कि counselor जो है comes to know about the shadow of a person by looking at those dreams. अदरवाइज कैसे पता चलेगा कि एक शख्स जो है उसकी नेगेटिव साइड ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, बिकॉज ऑफ्टन वी आर बिहेविंग व्हेन आवर persona is dominant rather than our shadow.
And then the second intervention used by Jung is transference and counter-transference. So the relationship between client and counselor is also investigated and assessed कि कैसे client जो है अपने emotions को दूसरे लोगों की तरफ जो उसके हैं वो transfer कर देता है counselor की तरफ. And then counselor is also involved somehow in this process so that he or she knows more about the client. तो transference और counter transference का अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिस्ट कुछ एडवांटेज है, और एडवांटेज ये है कि ऑन द फर्स्ट प्लेस ये रिलेशनशिप जो दोनों का है वो मजबूत होता है, और दूसरी बात ये है कि इसको समझने में मदद देता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन क्लाइंट्स पर्सनल लाइफ और उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो हैं वो लोगों की तरफ क्या हैं. सो लेट्स रिव्यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. वी टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडलर, और उसमें हमने एडलर की जो गोल्स हैं काउंसलर की वो डिस्कस की. एंड द गोल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी दैट वाज प्रेजेंटेड बाय एडलर इज टू कल्टिवेट सोशल इंटरेस्ट इन द पर्सन एंड टू आइडेंटिफाई इनअप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल दैट कुड बी यूनिक टू दैट पर्सन. एंड देन वी टॉक अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स. बहुत सारी टेक्निक्स का जिक्र किया आज हमने. फॉर एग्जांपल कन्फ्रंटेशन, आस्किंग क्वेश्चंस, एनकरेजमेंट, spitting in the client soup, and then setting short-term goals rather than the long-term ones, and then push buttons. और as if एक और बड़ी important टेक्निक थी कि हम उस तरह से बिहेव करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं इन फ्यूचर. और उसके बाद हमने थोड़ी सी इवैल्यूएशन की बात की थी कि कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं एडलर की थ्योरी में. और एक और न्यू फ्रॉइडियन का आज जिक्र आया, और वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यू फ्रॉइडियन है बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आफ्टर फ्रॉइड कि ये परहैप्स इसको साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट को फर्दर चलाएगा. लेकिन कार्ल यूंग realized his differences with Freud, and then he developed his own theory that is known as analytical psychology. As far as Jung's primary concepts are concerned, they are collective and personal unconscious, और उसके अलावा जो है he talks about different elements of personality. और personality के कौन कौन से elements आज हमने discuss किए? ego, persona, anima versus animus and shadow. And then we talked about goals, और जो goals हैं वो फिर क्या हैं? Goals are determined by the perception of the counselor about the client. कि अगर आप इंटीग्रेट करें अपने पर्सनैलिटी के बहुत से स्कैटर्ड पार्ट्स को तो यू कैन अचीव मेंटल हेल्थ. एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट टू पर्सनैलिटी टाइप्स, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, और किस तरह से उससे आपकी जो परसेप्शन है वर्ल्ड के बारे में वो डिटर्मिन होगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. एंड रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट एल्फ्रेड एडलर एंड कार्ल यूंग टुडे. थोड़ी सी यूंग की थ्योरी के बारे में, उसकी थ्योरी की इवैल्यूएशन के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे, और उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यू फ्रॉइडियंस का भी अगले लेक्चर में जिक्र होगा. अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.